My dear students, today I am here with a poem from your textbook Hornbill. The poem is short as well as beautiful. I say it a beautiful poem because it deals with nature. It describes the aspects of nature in a very beautiful way. Here, two objects of nature is described. One is a tree and the other is a bird. The name of the tree is laburnum tree and the name of the bird is goldfinch. At the same time, the poet sets an environmental situation that we find in nature. Here the environmental situation contrast each other. On the one side is silence and the other side is activity. Silence with peace, absolute calmness, and the activity with dynamism and the activity with energy. So on the both sides there are two environmental situations and they contrast each other. With this, there is an indication towards life, that life also represents these two aspects, the aspects of remaining peace, quiet and calm, and the aspect of remaining in dynamic activity. So in a very beautiful way, the poet Ted Hughes has made nature close to life. Ted Hughes has tried to draw a relation between nature and life. Actually, in fact, this poetry is an attempt to bring life close to nature and to assert that life exists only in nature. Life exists only in nature, but its existence, the existence of life, is not always the same. Sometimes life appears peaceful, sometimes it appears full of activity. Now let us go further. Here are the contents. First of all, you will find title page, then the central idea or theme of the poem, about the poet, then summary, and then image of laburnum tree and image of goldfinch. With it you are going to find word note and then the main poem, and finally the poetic or rhetoric devices. Now let us start with the title page, that is the Laburnum Top, the Laburnum Top by Ted Hughes. Now the laburnum top, that is the central idea of the poem. I have already discussed it. The poem The Laburnum Top is a beautiful poem in which the poet has used the laburnum tree and goldfinch as a symbol of life and its fluctuations. In this poem, the poet describes how the visit of a goldfinch changes the laburnum tree. It is very simple, and now I am just coming to explain it in Hindi. The poem Laburnum Top is a beautiful poem. मैंने पहले भी बोला है कि laburnum top जो है एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही सुंदर प्रकार की एक कविता है, जिसमें के पोइट ने इस्तेमाल किया, यूज़ किया laburnum ट्री को और गोल्ड फिंच को. और गोल्ड फिंच को यहाँ फिंचेस लिखा हुआ, आप इसको फिंच पढ़ेंगे. गोल्ड फिंच को किस तरह से इस्तेमाल किया, एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया है, सिंबल की तरह इस्तेमाल किया है, जीवन का सिंबल, एंड इट्स फ्लक्चुएशन का मतलब बदलाव. तो ये गोल्ड फिंच जो है और ये जो ट्री जो है, ये तो नेचर की चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों को पोइट ने लाइफ से जोड़ा है और इसको सिंबल की तरह इस्तेमाल किया है कि कैसे हमारे जीवन है और उसमें किस तरह से फ्लक्चुएशंस आते हैं. इन दिस पोएम, इस पोएम में
द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द विजिट ऑफ ए गोल्डफिंच चेंजेस। इस कविता में पोएट टेड हब्स ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे गोल्डफिंच जो है वो लेबनम ट्री को विजिट करती है और वहाँ पर आने के बाद वहाँ ट्री के में क्या क्या तब्दीलियाँ, क्या क्या चेंजेस पैदा करती हैं। सो नाउ अबाउट द पोएट, इट इज़ वेरी सिंपल। आई हैव जस्ट given a very little bit of information because you can get everywhere the information of the poet. ये 17 अगस्त 1930 को जन्म हुआ इनका, 28 अक्टूबर 1988 को ये देहांत हो गए। यूनाइटेड किंगडम इनका देश है। ये पक्के ब्रिटिश के रहने वाले हैं और ब्रिटिश पोइट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्होंने नेचर की पोइट्री करी है, इसलिए इनको हम लोग नेचर की पोइट्री को, जैसे आप जानते हैं कि जो पोइट्री नेचर को लेकर करी जाती है उसको हम लोग रोमांटिक पोइट्री कहते हैं। इस तरह से ये रोमांटिक पोइट हुए। नेक्स्ट, द लेबनम टॉप समरी। बहुत आसान है, मैं एक बार पढ़ूंगा और उसको हिंदी में बोलता जाऊंगा। द पोएम स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री। लेबनम ट्री को डिस्क्राइब करते हुए पोएम शुरू होता है। Whose top was still and silent, और शुरू में दिखाया जाता है कि लेबनम ट्री का जो टॉप है, जो एकदम ऊंचा हिस्सा है, वो बिल्कुल शांत है। इट लीव्स हैड टर्न येलो, और इसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं। एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, और इसके जो बीज हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। इट वॉज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर के महीने का ये दिन, एक दिन है। When the tree was standing still and death-like, उस समय ट्री को हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टैंड स्टिल है, मतलब एकदम खामोश खड़ा हुआ है, ऐसे कि जैसे कि मरा हुआ हो। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव, वो ट्री जो कि लाइफलेस लग रहा था वो बिल्कुल जीवित हो जाता है गोल्डफिंच के अराइवल के बाद, आते ही। शी केम टू फीड हर यंगर वंस, वो आती है क्यों? अपने बच्चों को खिलाने के लिए। वो आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, और ये बच्चे जो है ना किसी ब्रांच, इस ब्रांच का ऐसा हिस्सा जहाँ पर पत्तियाँ ज़्यादा हैं, थिक है, वहीं पर घोंसला है, उसमें इसके बच्चे हैं। द ट्री इज़ हर शेल्टर, इस चिड़िए का रहने की जगह जो है यही पेड़ है। शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच विथ चैपिंग साउंड, और जो आखिरी सिरा है, आखिरी ब्रांच जो है, वहाँ तक ये चिड़िया आती है ना तो चैपिंग साउंड करती है, चहचहाने की आवाज़ें निकालती हुई आती है। सी फर्दर मूव्स द अदर साइड ऑफ द ब्रांच विथ रैपिड, और आगे और ब्रांच की तरफ वो जाती है, और जब जाती है बहुत तेज़ी के साथ और प्रिकॉशनरी, बहुत ही सावधानी के साथ मूवमेंट करती है। और इसका मूवमेंट को कंपेयर किया गया है लिजार्ड के तरह, जिस तरह से लिजार्ड स्मूथली और बहुत ही नरमी से जंप करता है, पेड़ों में सरक के आँखों से ओझल हो जाता है, ठीक उसी तरह से। एज सुन एज शी अराइव्स, जैसे वो पहुँचती है चिड़िया, हर यंगर वंस स्टार्ट चॉपिंग लाइक अ मशीन, तो उसके जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि मेरी माँ ये खाना वाना लेकर आई है, तो ये बच्चे जो है ना चर्पिंग करने लगते हैं, जैसे कि मानो कि ये पूरा जो वहाँ का जो हिस्सा है लेबनम ट्री का वो एक मशीन हो गया है। और जिस तरह से मशीन में अचानक हलचल होती है पुश करने के बाद बटन, वही हलचल वहाँ पर हो गई है। एंड वाइब्रेटिंग, और एक वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है। एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, और वो चिड़िया जो हैं, वो बच्चे जो हैं जो कि घोंसले में हैं, खुश हो रहे हैं और खुश होकर अपने विंग्स को फ्लैप कर रहे हैं, माने फड़फड़ा रहे हैं। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव, और ये जब होता है गोल्डफिंच के आने के बाद, जब ये परिवर्तन आता है तो इसमें जीवन दिख रहा है कि चिड़िया जो है, बच्चे जो हैं वो जीवित हैं, लेकिन बहुत शांत है, लग रहा था इसमें कोई है ही नहीं है जीवन। लेकिन जैसे ये चिड़िया आती है, इस चिड़िया के आते ही, गोल्डफिंच के आते ही, उस पूरे पेड़ के अंदर एक जीवन सा आ गया, एक पूरी, ऐसा लगा कि ट्री भी जी उठा है, ट्री भी जी उठा है। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव, और ये मरा हुआ दिखता पेड़ जो है वो एकदम से जीवित हो जाता है। एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स, और इसमें एक किस्म की ट्रेम्बलिंग मूवमेंट है, इधर से उधर होने का, और इसमें कपकपी की सी पैदा हो जाती है। आफ्टर फीडिंग देम, उनको खिलाने के बाद, सी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, उनको खिलाने के बाद उसी पेड़ के एक दूसरे सिरा में जो ब्रांच है वहाँ उड़ के निकल जाती है गोल्डफिंच। हर डार्क कलर्ड फेस विद द येलो बॉडी, उसका जो फेस है वो फेस डार्क कलर्ड है, अब पूरी बॉडी जो है येलो है, वॉज बेयरली विजिबल, मुश्किल से दिख रहा था। एज शी वैनिश बिहाइंड द येलो लीव्स, इससे कि जो लेबनम ट्री है ना उसके पत्ते कहीं कहीं घने हैं
और पत्तों के बीच जो छोटे छोटे गैप्स हैं, उन गैप से ही उस चिड़िया को हम देख सकते थे। इसलिए चिड़िया का दर्शन पूरे रूप में उसका रूप नहीं दिख रहा था, बल्कि ऐसा दिख रहा था कि जैसे पत्तों ने कहीं कहीं उसको ढांप रखा हो। तो इस तरह से वो छुपी हुई दिखती है। शी फ्ली अवे इन द स्काई, और आसमान में वो उड़ जाती है। लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, जब वो आसमान में उड़ जाती है तो वो पेड़ जो अभी अभी जीवित हो उठा था, तो लगता है कि फिर से एक मृत्यु वाला वातावरण वहाँ पर छा गया, खामोशी छा गई है। आगे आते हैं, ये इमेज है लेबरनम आर्क फ्लावर का। उसके साथ ये देखिए, ये हमारा ये ब्लैक फेस वाली, येलो कलर वाली ये गोल्ड फिंच चिड़िया है जो कि उड़ के जा रही है। और वर्ड नोट्स मैंने इकट्ठा कर दिया है, करीब 11 इसमें हार्ड वर्ड्स मैंने देखा है, ऐसा लगता है कि 11 हार्ड वर्ड्स हैं। इसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, आप इसको देखेंगे। ट्विचिंग चरप जो लिखा हुआ है, शॉर्ट एंड सडन साउंड, ट्विचिंग चरप, शॉर्ट एंड सडन साउंड मेड बाय ए बर्ड। एक चिड़िया जो अचानक चहचहाने लगती है, लेकिन उसका चहचहाना शॉर्ट होता है, एक थोड़ी सी चहचहाट, खामोशी, फिर थोड़ी सी चहचहाट, खामोशी, ऐसे को हम लोग ट्विचिंग चरप कहते हैं। ट्विच करना कान मरोड़ने को भी बोलते हैं। स्टार्टलमेंट, अ सडन अनएक्सपेक्टेड एक्शन। स्टार्टलमेंट एक वर्ड है जो इसमें यूज हुआ है, उसका मतलब अचानक और ऐसा एक्शन जिसको कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो, आशा ही नहीं किया हो, और जो आपको सरप्राइज ला के दे। स्लिक का मतलब स्मूथ होता है, बिल्कुल स्मूथ। एब्रप्ट का मतलब वही सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, सेम होता है। तो यहाँ पर ट्विचिंग और एब्रप्ट बहुत मिलता जुलता मीनिंग रखता है। तो अचानक और अनएक्सपेक्टेड होने वाले चीज़ों को एब्रप्ट कहते हैं हम लोग। ट्रिलिंग जो होता है ना, ये एक्चुअली एक वॉइस है। ये वॉइस जानवरों में हुआ करता है। जब जानवर किसी को वेलकम करते हैं ना, तो ये ट्रिलिंग साउंड निकालते हैं, वो हाई पिच्ड होता है। और ये चर्प लाइक है, मतलब जिससे कि चिड़िया चहचहाती है और बहुत तेज आवाज में चहचहाती है। क्यों? वेलकमिंग, किसी के आने की, किसी को आने पर उसका स्वागत के रूप में चिड़िया या जानवर, बिल्लियों को खासतौर से आप देखते होंगे कि मैंने कोई भी जानवर जब अपने जैसे जानवरों से मिलता है तो वेलकमिंग साउंड, मैंने उनको खुशामदीद कहता है, उनको ग्रीट करता है, तो कुछ साउंड निकालता है, उसको हम लोग ट्रिलिंग साउंड कहते हैं। अभी अभी आपने थीम में सुना है, समरी में सुना है कि चिड़िया के जो बच्चे हैं वो घोंसले में हैं। जैसे ही चिड़िया पहुंचती है, गोल्डफिंच पहुंचती है, उनकी माँ पहुंचती है, तो ये छोटे छोटे जो चूजे हैं, चिड़िया जो हैं छोटे छोटे, ये अपनी माँ को वेलकम करने के लिए साउंड निकालते हैं। उसी साउंड को ट्रिल कहा जा रहा है यहाँ पर। स्टॉक का मतलब कहना होता है, पेट भरने को कहते हैं, खिलाने को कहते हैं। फ्लैट यहाँ पर बर्ड के लिए आया है। फ्लैट का मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर बर्ड के लिए आया है। ओपन एंड शट इट्स विंग और टेल। चिड़िया देखेंगे कभी कभी अपने पंखों को या अपने जो टेल उसकी है, जो पूंछ उसकी है, उसको कभी खोलती है और बंद करती है, खोलती है बंद करती है, विथ ए क्विक फ्लिकिंग और मोशन। उसमें एक झटके का मोशन होता है, यानी पंख को खोलना बंद करना, उसमें एक झटके का मोशन होता है, एक आवाज़ निकलती है। एरी का मतलब होता है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, साइलेंस के साथ यूज होता है, खासतौर से ऐसी खामोशी जो कि आपको एकदम स्ट्रेंज लगे। पहाड़ों में ऐसी खामोशी आपको अनुभव कर सकते हैं जो कि एकदम स्ट्रेंज लगेगी, ऐसा लगेगा कि आपके कान बज रहे हैं। और फ्राइटनिंग, और अचानक ऐसी खामोशी में जब इंसान अपने आप को पाता है तो उसे डर लगता है। लॉन्च अवे मतलब फ्लाइज अवे। और 11वां नंबर सबसाइड है। सबसाइड भी बहुत तरह से यूज करते हैं, इसमें स्लो डाउन, नीचे जाने को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सबसाइड। सो दिस इज द वर्ड नोट्स, ऑल द वर्ड्स विल कम व्हाइल वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम, एंड आई विल अगेन टेल यू द मीनिंग, बट दिस इज हियर फॉर योर बेनिफिट। सो नाउ द पोएम, अब हम लोग पोएम को शुरू करते हैं। द लेबनम टॉप इज साइलेंट। अभी आप लेबनम टॉप जो ट्री है उसका जो ऊपर का सिरा है वो बिल्कुल वहाँ पर सन्नाटा, खामोशी छाया हुआ है। क्वाइट स्टिल, अभी भी खामोशी वहां पर है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, आफ्टरनून का समय है, ठीक है ना, शाम होने से पहले वाली की समय, दोपहर ढलने के और शाम होने के बीच का समय है। और ये समय जो है ना, येलो सितंबर सनलाइट, यानी सितंबर का महीना है। उस महीने में सूरज की रोशनी थोड़ा सा मेलो हो जाती है, थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, और उसके कलर येलो इसीलिए कहा गया। येलो हमेशा किसी चीज़ के अंदर जो गति कम हो जाती है लाइफ के अंदर, तो उसको येलो फेस कहते हैं हम लोग, यानी वो चेहरा जिस पर के लाइफ का रंगत जो है, लाली जो है, ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से सनलाइट के अंदर जो एक चमक होती है, वो चमक थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन दोपहर के बाद और शाम के होने के पहले बीच का समय है, इस समय तो बहुत वहाँ पर शोर होना चाहिए था, बहुत एक्टिविटी होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। और फ्यू लीव्स एलोइंग, और सितंबर का महीना में
जैसे कि हमारे यहाँ अप्रैल के महीना में आप देखते होंगे होली से पहले एक पतझड़ का समय आता है जिसमें के पत्ते पीले होते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं। वहाँ सितंबर में वही चीज़ें होती हैं और पत्ते कुछ पीले पड़ गए हैं और इट्स सीड्स फॉलन, और जो इस पेड़ के जो इसमें जो बीज हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं। यहाँ मैं एक बात आप लोगों को याद दिलाऊं, मैं जब आप लोगों को थीम बता रहा था तो मैं दो चीज़ें मैंने आपको बताया कि इसमें नेचर के दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक नेचर का इसमें जो है वो लेबनम ट्री है जैसे कि आप जान गए हैं, और दूसरा इसमें जो है वो आपको एक चिड़िया है। और इसके साथ साथ मैंने बताया था कि इसमें इन्वायरमेंट का भी एक रोल है। इन्वायरमेंट में दो कॉन्ट्रास्टिंग इन्वायरमेंट इसके अंदर हैं, एक तरफ बिल्कुल साइलेंस है तो दूसरी तरफ एक्टिविटी है। साइलेंस पीस को रिप्रेजेंट करता है और एक्टिविटी डायनेमिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मौसम का एक रोल है। टेड हब्स ने, जो कि पोएट हैं, उन्होंने मौसम को भी इसमें शामिल किया हुआ है और मौसम को चुना है सितंबर वाला मौसम। सितंबर वाला मौसम यानी समय को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और लाइफ देखिए, लाइफ में हमेशा क्या होता है, उसमें लाइफ में टाइम होता है और प्लेस होता है। टाइम और प्लेस को छोड़कर लाइफ नहीं है, एक समय होता है और उस समय में एक जगह होती है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि लाइफ एग्जिस्ट करता है, और ये लाइफ कब एग्जिस्ट कर रहा है, एक समय में कर रहा है, टाइम एंड स्पेस जिसको हम लोग कहते हैं। और स्पेस के नाम पर यहाँ पर क्या है, वो एक लवर्नम ट्री वाला ट्री है, वहीं पर सब कुछ हो रहा है। तो ये मैंने वहाँ पर आप लोगों को सोचा था यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें दो चीज़ें जो ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर हैं और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, साथ ही साथ वहाँ पर कुछ आपको वेदर फैक्टर भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि इस चीज़ को पूरा करता है, इस थ्योरी को पूरा करता है कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट टाइम एंड स्पेस, विदाउट टाइम एंड स्पेस। अब देखिए, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच के आने तक विथ ए ट्विचिंग चरप। ट्विचिंग चरप को हमने जिसे बताया कि शॉर्ट एंड सडन साउंड, आप इसको देखेंगे, याद करेंगे। अ ट्विचिंग चरप का मतलब, अ ट्विचिंग चरप का मतलब आपका होगा शॉर्ट एंड सडन साउंड मेक बाय अ बर्ड। तो वो बर्ड आती है ना, शॉर्ट और सडन साउंड करती है, करते हुए आती है। ए सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, अचानक से आती है। और स्टार्टलमेंट का मतलब होगा ए सडन अनएक्सपेक्टेड एक्शन। तो ब्रांच के उस आखिरी सिरे पर अचानक से एक चिड़िया आती है जिसका नाम गोल्ड फिंच है, और वो चिड़िया का आने से क्या होता है, सडन अनएक्सपेक्टेड एक्शन चालू हो जाता है। अचानक से एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी एक्टिविटी चालू होती है जिसको कि हम पहले से एक्सपेक्ट नहीं किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। तब क्या लगता है कि कोई है जो कि बहुत ही क्विक मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि एक लिजार्ड मूवमेंट करता है, लेकिन लिजार्ड का मूवमेंट एकदम से स्मूथ होता है। तो चिड़िया स्मूथली ब्रांचेस के भीतर मूव करती है और उसके मूवमेंट में एक अलर्ट होता है, होशियार रहती है, और एब्रप्ट होता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पर स्टार्टलमेंट को देखा आपने, और अभी यहाँ पर कहा जा रहा है एब्रप्ट। दोनों को मतलब सेम होते हैं, सेम होते हैं मतलब ए सडन अनएक्सपेक्टेड एक्शन। तो पॉइंट फिर याद दिला रहा है कि चिड़िया आती है, चिड़िया आने के बाद वो एकदम से जहाज का जो पेड़ का जो ऊपरी सिरा है, उस ऊपरी सिरा के ऊपर वो बैठती है, और बैठने के बाद वो सरक कर जब जाती है तो उसके सरक के जाने में एक मूवमेंट होता है, सडन मूवमेंट होता है, तेजी के साथ मूवमेंट होता है। लेकिन ये मूवमेंट भद्दा नहीं होता है, बल्कि ये उस लिजार्ड की तरह होता है जो स्मूथली पेड़ों पर इधर से उधर जाया करता है। और इस तरह से स्मूथली मूवमेंट करके चिड़िया के बारे में है, चिड़िया इंटर करती है द थिकनेस, पेड़ के का वो सिरा जहाँ पर बहुत सारे पत्ते हैं, थिक है जहाँ पर, एंड अ मशीन स्टार्टअप। और उसके आते ही ऐसा लगता है कि वो पेड़ अब पेड़ नहीं है, लबनम ट्री जो कम उसी के साथ था, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मशीन का वो पुश करते हैं ना, तो मशीन अचानक से चल पड़ता है, एक एक्टिविटी चालू हो जाती है, डायनेमिज्म का आवाज़ होता है, ऐसा लगता है कि वही पेड़ में हुआ है, जैसा कि कोई मशीन अचानक से शुरू हो गई है। और मशीन जो है चीटरिंग की है, वो मशीन जो है वो चीटरिंग की है। हमने चीटरिंग का मतलब वहाँ आप लोगों को मैंने बताया, जो चिड़िया की आवाज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं चीटरिंग। तो अचानक चिड़ियाओं की एक आवाज़ होती है चीटरिंग,
एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, बहुत सारे पंखों का, परों का, चिड़ियाओं के बहुत सारे पर होते हैं। हमने कहा था कि घोंसले में उस चिड़िया के आपके गोल्डफिंच के बच्चे हैं, तो वो बच्चों उनके भी तो अपने अपने पंख हैं, वो कई सारे पंख, अचानक से ट्रेमर, एक एक्टिविटी होना शुरू हुई, एंड ट्रिलिंग एंड ट्रिलिंग एंड ट्रिलिंग और ट्रिलिंग एंड थ्रिलिंग। और आपको थ्रिलिंग लगेगा, आश्चर्य होगा कि अचानक इस खामोशी में किस तरह से उत्तेजना पैदा हो गया। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और पूरी जो पेड़ थी ना, ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ में एक्टिविटी हो गई है, पेड़ कांपने लगा है, हिलने लगा है। एंड ट्रिल्स एंड द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। पूरे ट्री में वही है, ट्रेम्बलिंग होता है, और बहुत आपको एक थ्रिलिंग सा आपको एक एक्सपीरियंस होता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली। ये चिड़िया की फैमिली का एक इंजन है। इंजन हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि इंजन जो है वो खामोश होता है, लेकिन जब वो गति में आता है, चलने लगता है, तो वो अपने से जुड़े हुए चीज़ों को गति देता है। तो ये चिड़िया भी जो है ना, अपनी फैमिली के लिए इंजन है। वो बच्चे जो हैं इसके बिना चल नहीं पाएंगे। वो बच्चे जो है अपने घोंसले में, जब तक के गोल्डफिंच, माँ रूपी गोल्डफिंच अपने उनके लिए दाना दुनका चुन कर ला कर उनको नहीं खिलाएगी तो वो मर जाएंगे। वो उनका मूवमेंट, उनका पूरी जीवन जो है वो उस तरह से आगे बढ़ेगी। तो उस आगे बढ़ते हुए जीवन के नाम के डब्बे को आगे बढ़ाने के लिए एक इंजन चाहिए। वो इंजन जो है वो गोल्डफिंच है। उन छोटे चूज़ों के लिए, उन छोटे चिड़िया के बच्चों के लिए इंजन जो है गोल्डफिंच है। शी स्टॉक्स इट फुल। वो शी मैंने फिर यहाँ गोल्डफिंच के बारे में कहा गया है, वो उन बच्चों को पूरा पेट भर के खिला देती है। देन फ्लर्ट्स आउट, मैंने ओपन, फ्लर्ट आउट कहते हैं, ओपन एंड फ्लर्ट आउट कहते हैं टू, मतलब एकदम से उड़ के चले जाना। ओपन एंड शट इट्स विंग और टेल विद अ क्विक फ्लिकरिंग साउंड, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो फ्लर्ट्स आउट का मतलब कि वो चिड़िया फिर अपने पंखों को खोलती है, बंद करती है, और वहाँ से उड़ के चली जाती है टू अ ब्रांच एंड, उस पेड़ के एक और शाखा के किनारे जाके बैठती है। शोइंग हर बार्ड फेस, और अब उस वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि उसका चेहरा जो है ढका हुआ, बार्ड माने ढका हुआ, पत्तों से, घने पत्तों से ढका हुआ है, और आइडेंटिटी मास्क, और उसके पहचान पर एक जैसे कि मास्क लग गया है। वो मास्क किस चीज़ का है? लेबनम ट्री के पत्तों का, जो थिक हैं, बहुत घने हैं, वो जहाँ घने है वहीं वो जाती है, गोल्डफिंच बैठती है तो गोल्डफिंच दिखती है, लेकिन उन घने पत्तों के बीच में जो गैप्स है, उस गैप से दिखती है। तो इस तरह से ये पत्ते जो है ना, उसके चेहरे पर एक कवर लगा देते हैं, उस कवर से हम पूरे गोल्डफिंच को नहीं देख सकते हैं। अब आइए, देन विथ एरी डेलिकेट विशल चरप विस्परिंग, और उसके बाद धीरे धीरे जो एक एक्टिविटी उस पेड़ के अंदर आई थी गोल्डफिंच के आने की वजह से, और गोल्डफिंच के बच्चे जो हैं उनके अंदर एक फड़फड़ाहट पैदा होने से वो धीरे धीरे क्या हुआ, डेलिकेट, बड़ा नाजुक तरीके से, एरी का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे। एरी का मतलब हमने आप लोगों को बताया था कि एरी जो होता है वो स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग होता है। अभी इतनी हलचल, अचानक वो हलचल खत्म, एक सन्नाटा छाने लगा, और ये सन्नाटा कैसे छाया? विशल चरप, ये जो बच्चों का चहचहाना था अब एक हल्की सीटी की आवाज़ की तरह हो गई। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि विस्परिंग साउंड, जो आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं हम लोग, जो कि दूसरों को सुनाई न दे, इस तरह से धीरे धीरे आवाज़ें कम होती गईं। शी लॉन्चेज अवे मतलब फ्लाई अवे, और उसके बाद वो चिड़िया गोल्डफिंच उड़ के चली जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब आप जानते हैं, वो अतः आसमान की तरफ उड़ के चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लेबरनम में जो आवाज़ें पैदा हुई थी, जो जीवन की एक्टिविटी पैदा हुई थी, वो सबसाइड करती है, स्लो डाउन हो जाती है, और तमाम जीवन की जो एक्टिविटी से वो पूरी पेड़ खाली हो जाती है। तो ये हमने शब्दों को जोड़ कर जो इसमें हैं तो हमने आपको बताया, लेकिन शब्दों के माध्यम से चीज़ों को हम समझते हैं। तो आप देखेंगे गौर से हमारी इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद, तो आपको लगेगा कि किस तरह से जीवन जुड़ा हुआ है नेचर के साथ, और जीवन का जुड़ाव नेचर के साथ जब होता है, और उसमें जब एक मौसम भी शामिल तो रहेगा ही रहेगा,
तो उस जुड़ाव से देखेंगे कि नेचर में एक फर्क आता है, नेचर के अंदर गति पैदा होती है, नेचर के अंदर शांति पैदा होती है। तो ये गति शांति जो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, नेचर के साथ नहीं। पहाड़ तो एक जगह खड़ी चीज होती है, वो कहाँ मूव करती है। पेड़, चलिए बायोलॉजी में कहा जाता है ये कि लिविंग बीइंग है, लेकिन उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट तो जीवन, जो इंसान का जीवन है उसमें मूवमेंट है। तो इसमें ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया गया कि ह्यूमन लाइफ के बगैर नेचर जो है वो बिल्कुल बदनुमा, बदसूरत, एक खामोश पिक्चर की तरह होती है। लेकिन जीवन जब आई नेचर में, जिंदगी जब नेचर में आई, तो नेचर में एक्टिविटी का, नेचर में साइलेंस का, नेचर में इन तमाम चीज़ों के माध्यम से एक नई खूबसूरती, एक नया रंग पैदा हो गया। यही इसमें मैसेज है। अब हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पर पोएम आपका एंड हुआ। हम लोग मूव करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। पोएटिक डिवाइसेस बहुत आसान है। अब देखिए एलिट्रेशन यूज हुआ है, आप किताब में देखेंगे सितंबर सनलाइट, जहाँ पर सेप सन दो एलिट्रेशन है, ठीक है। सिमिली है स्लीक एज अ लिजार्ड, आपको मैंने पहले भी बताया है पोएम में कि एज और लाइक का इस्तेमाल जब करते हैं इस तरह से कंपेयर, तो उसको हम लोग सिमिली कहते हैं, ठीक है। मेटाफोर है, मेटाफोर में हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। तो ये लाइन जो होगा मशीन से लेकर चिटरिंग तक ये मेटाफोर है। आप देखेंगे इट इज़ इंजन ऑफ आवर लाइफ, लाइफ के लिए वो जो है उसका आना जो है इंजन रूपी है। तो ये डायरेक्ट कंपेरिजन है, ठीक है ना। चिड़िए का इंजन बताना, ये नहीं कहा जा रहा है कि द बर्ड इज लाइक एन इंजन, द बर्ड इज एज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, ऐसे नहीं बोला जा रहा है। डायरेक्ट कहा जा रहा है कि इट इज द इंजन। लेकिन इट कौन है? चिड़िया है। चिड़िया के अपने साथ खाना लेकर आना है। तो ये डायरेक्ट कंपेरिजन जो होता है तो इसको मेटाफोर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेटाफोर में आप इसको देखेंगे। पर्सोनिफिकेशन, जब नेचर के ऑब्जेक्ट को हम कोई ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, जब मानव के जो क्वालिटीज़ होते हैं देते हैं, तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, नेचर को पर्सोनिफाई करते हैं। होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये ट्रेम्बलिंग और थ्रिलिंग जो है ये ह्यूमन लाइफ के एडजेक्टिव्स हैं। हम लोग कांपते हैं, हम लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन अभी ट्री, ऐसा लगता है कि ट्री जो है जीवित हो उठा है, और इस चिड़िया के आने की वजह से उसकी गति को, उसकी एक्टिविटी को देखकर या उसको महसूस करके उस चिड़िया मानव के तरह जी उठा है, और उसमें ट्रेम्बलिंग और थ्रिल आ गई। ये लिहाजा ये जो दो वर्ड हैं इस तरह से ये पर्सनिफाई करते हैं हमारे पेड़ को। ट्रांसफर एफिडेट कहते हैं कि मैंने एक का एडजेक्टिव दूसरे को देना। हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि बड़ा ही दुख देने वाली रात थी। रात कहाँ को दुख दे? दुख तो उस रात में होने वाली कोई घटना आपको देती है। तो एक दुखदायक घटना को बताने के लिए हम लोग कहते हैं कि रात बड़ी दुखदायक थी। घटना बोलते ही नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये दुखदायक रात नहीं है, बल्कि उस रात में होने वाली घटना जो है वो दुखदायक थी, जिसकी वजह से आपकी रात, चूंकि रात में हुई तो रात दुखदायक हो गई। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, यानी किसी और के एडजेक्टिव दूसरों को देना। यहाँ पर हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो चिड़िया का जो चेहरा है वो ढका नहीं है किसी चीज़ से, बल्कि ये बर्ड कौन कर रहा है? इनडायरेक्टली बार कर रहा है वो पत्तियाँ, जो कि घनी पत्तियाँ हैं। घने पत्तियाँ जो हैं वो बार की तरह काम करी, चेहरा थोड़ी ना उसका बार है। लिहाजा ये घने पत्तियों की क्वालिटी है कि दे आर बार्ड। सो इस तरह से उनके एडजेक्टिव को फेस के तरह से यूज़ किया गया है। देयरफॉर इज ट्रांसफर एफिडेट। तो ये कुछ हमारे रेटोरिक और पोएटिक डिवाइसेस हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। So now the end of the poetry, and I hope you find it satisfying. So thanks for watching the video. Thanks for watching the video.